آج فادر ندیم فرانسس کی پہلی سالگرہ ہے ان کی وفات کے بعد. تو میں نے اور فادر عنایت نے سوچا کہ ہم ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری کریں تاکہ ہم فادر ندیم فرانسس کی پہلی سالگرہ ان کی وفات کے بعد اس کو مارک کر سکیں. اور امریکہ میں یہ ایک روایت ہے کہ خاص طور پر ہاسپس کمپنیز میں جب کوئی ہاسپس کمپنی میں وفات پاتا ہے تو ہاسپس کمپنیز آر ریکوائرڈ لیگلی ٹو کیپ کانٹیکٹ ود دا فیملیز فار 13 months. 13 مہینے تک ہاسپس کمپنیز آر ریکوائرڈ ٹو کیپ کانٹیکٹ ود دا فیملیز فار 13 months. فادر ندیم کو فوت ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، اور میں نے اور فادر عنایت نے سوچا کہ ہم فادر ندیم کی اس پہلی سالگرہ پر جب وہ اپنے خاندان نہیں ہیں ہم ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری کریں تاکہ فادر ندیم کے خاندان اور ان کے دوستوں کو دلاسا دیا جا سکے. اور مجھے امید ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہماری اس کاوش میں شامل ہوں گے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو جو ہمیں چھوڑ کر آسمان میں چلے جاتے ہیں انہیں اتنی جلدی بھول نہ جائیں، بلکہ انہیں یاد رکھیں اور ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان سے سبق سیکھیں. فادر ندیم فرانسس سے میری پہلی ملاقات 1984 میں ہوئی جب ان کی آرڈینیشن ہوئی. اور کیونکہ یہ فادر عنایت کے بہت دوست تھے اور فادر عنایت 86 یا 87 میں ڈین آف اسٹڈیز سینٹ میری سیمنری میں بنے. اور جیسے ہی فادر عنایت سیمنری میں آئے تو اس وقت سے فادر فرانسس ندیم کا بھی سیمنری میں بہت آنا جانا ہوا. تو اس طرح ان سے تقریباً ہر روز ملاقات ہوتی تھی. اور میں نے انہیں بہت کم گو انسان پایا لیکن بڑے دانا، بہت کم بولتے تھے اور بڑا ہی وڈ اسپیک اونلی وین دیر از نیڈ، بہت میننگ فل بولتے تھے. اور پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں جہاں پر بھی کسی مسیحی سے زیادتی ہوتی تو فادر فرانسس ندیم وہاں پر موجود ہوتے تھے. خدا ان کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے، اور انہیں تو ہماری دعاؤں کی اب ضرورت نہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے. خدا فادر ندیم کی اور ان کے تمام دوستوں کو تسلی اور تشفی عطا کرے. اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس پر کمنٹ ضرور کریں، اور ہمیں آپ کے جو دل سے کمنٹس نکلتے ہیں وہ یوٹیوب چینل پر جا کر لکھیں تاکہ ہمیں آپ کے دل کی آواز کا پتہ چل سکے اور ہم اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے اور آپ کے پیاروں اور دوستوں کے لیے بنا سکیں. اور اس لیے سبسکرائب کرنا، اسے شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں. اوکے، تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. فادر فرانسس ندیم اور میرا 50 سال کا ساتھ ہے. 1970 میں ہم دونوں سینٹ لارنس ہائی اسکول گلبرگ میں داخل ہوئے. 7ویں کلاس سے لے کر ہم اکٹھے رہے ہیں. پھر سیمنری میں اکٹھے رہے، پھر میجر سیمنری 6 سال فلپائن میں بھی ہم نے اکٹھے بطور کلاس میٹ اپنی تعلیم مکمل کی. اور پھر پچھلے 1984 میں ہم دونوں کاہن بھی مقرر ہوئے، اور اس کے بعد خدمت مختلف پیرشز میں ہم نے کی ہے. فادر فرانسس ندیم 4 بار کیپوچن جماعت کے سردار بھی بنے ہیں، اور خاص کر پاکستان میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں انہوں نے بڑا نام بھی پیدا کیا اور ایک بڑی خدمت کی ہے. اور پاکستان کی کلیسیا ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی. میری دعا ہے خدا ان کو ابدی زندگی عطا کرے. Father Francis Nadeem was my best friend from 1970 when we were students at St. Mary's Minor Seminary, Lahore. After his ordination on 14th September 1984, he worked with me for the Catholic Nakib. When I went to the Philippines for formation course in 1987, he took over as the chief editor of the fortnightly Urdu Catholic Nakib. He introduced many new journalistic things and made it known to the whole country. At my seminary times, he was very cooperative and taught current affairs to
to the students who still remember his effective approach and showed love and concern to them. In my pastoral work in 2 parishes, especially Mariamabad and Kasur, he was present for all interreligious and interdenominational programs. When he got the Tamga Imtiaz from the hands of former President of Islamic Republic of Pakistan, Rafiq Tarad, I drove him to Islamabad. Later, he got this award for the second time. While traveling together, we used to plan different programs and at our return sit and plan to implement them. After the death of Bishop John Joseph, we started monthly The Christian View in 1998 in English, which continued till 2018. Father Francis Nadeem always was on the move and concerned for the Capuchin order and spent all his God-given talents for the progress and betterment of the order. It was because of him that I was able to go with him to Assisi after one of our international World Congress of the Catholic Press. As the president of the Pakistan Catholic Press Association, Father Francis Nadeem organized the writers, journalists and print media, Christian young men and women. We were always together for the family affairs of both of us. I pray that may his soul rest in peace. Amen. कैसी यादों से कहूँ, दिल से वही बातें करो, चाहतों के रस में डूबे नाज की बातें करो, हो कैसी यादों से कहूँ. फादर नदीम, आपको सालगिरह मुबारक. खुदावंद की बारगाह में आपकी याद अक्सर आती है और आज वो दिन है जब आपने इस दुनिया में जन्म लिया था, तो हम आपको फरामोश हरगिज नहीं कर सकते. आप याद हैं हर दम, हर पल, और यादों के सहारे हम आपको जिंदा जावेद अपने सामने महसूस करते हैं. आपसे दोस्ती की इब्तिदा 1985 में हुई. अरसा दराज की बात है, लेकिन खुदा ने हमारी दोस्ती कायम और दायम रखी. मेरी आपसे आखिरी मुलाकात 2015 में हुई. आप ही के यहाँ हमने क़याम किया और आपकी मेज़बानी का हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं. हम याद रखते हैं हर एक वो जगह जहाँ फादर अनायत और मैं, हम तीनों अक्सर जाया करते थे और यूं हम अपनी कहाना ज़िंदगी को भी शेयर करते थे. अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात और तजर्बात भी हम एक दूसरे से शेयर करते थे. आपकी यादें हमेशा कायम रहेंगी. खुदावंद आपको जन्नत में जगह अनायत फरमाए. आज मेरे नहायत ही मुखलिस फादर नदीम फ्रांसिस की सालगिरह है.
फादर नदीम साहब से मेरी मुलाकात 1974 में माइनर असेंबली लाहौर में हुई। 1 साल तक हमने इकट्ठे वहाँ तालीम हासिल की। फिर फादर नदीम फ्रांसिस वो फिलिपाइन चले गए। फादर नदीम फ्रांसिस 1984 में कहानत के ओहदे पर सरफराज हुए और मुझे कहानत का साक्रामेंट 1985 में मिला। फादर नदीम फ्रांसिस कैथलिक नकीब के चीफ एडिटर थे और मैंने फैसलाबाद डायसिस से नया मैगज़ीन शुरू किया जिसका नाम शाउर था और बाद में वो मुकाशफा की शक्ल इख्तियार कर गया। फादर नदीम फ्रांसिस नहायत ही अच्छे पासबान, वो बेबाक बेखौफ लीडर थे। फादर नदीम फ्रांसिस मुहब्बे वतन भी थे। तो इसका सबूत देने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, ये देश हमारा है। वो चाहते थे कि दूसरे मज़हब के लोगों को और सबको बताएं कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में मसीहियों का अहम किरदार है और हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें अपने वतन पर नाज है। फादर नदीम फ्रांसिस कैपुचिन बरादरी के सुपीरियर भी रह चुके हैं और हमने हमेशा उनके बारे में बहुत अच्छी खबरें सुनी कि वो किस तरह फ़राख दिल थे, किस तरह वो अपने फ़ादर साहबान का एहतराम करते थे, फ़ादर साहबान के साथ अच्छा सलूक करते थे और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। फादर फ्रांसिस का बर्थडे है। फादर जी, हम सब बहन भाई आपको बड़ा बर्थडे मुबारक कहते हैं और आपको हर रोज़ अपनी दुआ में याद रखते हैं। खुदा आपको अपनी ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हम आपको भूले नहीं। आज हम आप बर्थडे पे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। खुदावंद आपको मान में रखे, अपनी बात में रखे। उन सब लोगों को बड़ी बरकत दे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बना रहे हैं। सबको अपनी मान रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हैप्पी बर्थडे फादर फ्रांसिस नदीम इन हेवन। फादर फ्रांसिस नदीम को अगरचे इस दुनिया से रुखसत हुए चंद माह हुए हैं, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो अभी भी तरोताज़ा हैं और ये यादें जो हैं उनकी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। फादर फ्रांसिस नदीम जो हैं वो बहुत बड़े कायद थे, बहुत बड़े लीडर थे। वो समाजी लीडर भी थे, रूहानी भी और सियासी लीडर भी थे। उनमें बहुत ज़्यादा समझ बूझ थी। खुदा ने अपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान में उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया। उनकी खिदमत जो है उसकी बहुत सारी जहतें हैं। उनमें जो एक बड़ा लीडर जो है उसकी खसूसियात मौजूद थी। जो बड़ा लीडर होता है उसकी 2 खूबियाँ जो हैं, बहुत सारी खूबियों में से 2 खूबियाँ जो हैं वो होनी चाहिए जो फादर फ्रांसिस नदीम में थी, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और ये वो खूबियाँ जो मैंने उनकी ज़िंदगी में देखी। पहली खूबी जो बड़ा लीडर है उसकी ये होती है कि वो दूसरों को लीडर बनाता है। तो फादर फ्रांसिस नदीम ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और ये कायदाना सलाहियत जो है दूसरों में मुंतकिल की। उसके अलावा एक जो बड़ा लीडर होता है वो जोहर शनास होता है। वो लोगों में खूबी को पहचान लेता है कि कौन सा बंदा जो है वो कौन सा काम कर सकता है। तो ये उनमें खूबी थी, वो उस बंदे को वही काम देते थे जो वो कर सकता था। तो ये 2 खूबियाँ जो है मैंने उनका फादर फ्रांसिस नदीम की ज़िंदगी में उनको देखा। वो बड़े शोला बयां मुकर्रर थे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो अमन के सफ़ीर थे। खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा बरक़ात अता कर रखी थी। वो क्रिश्चियन मुस्लिम इत्तेहाद जो है उसके हामी थे। उन्होंने बैनुल कलीसियाई और बैनुल मज़ाहब मुकालमा जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया, बहुत ज़्यादा काम किया। नौजवानों को वो बहुत मुतहरक रखते थे। उन्होंने किताबें जो हैं वो भी लिखी हैं और उसके अलावा तालीफ़ की हैं किताबें। एडिटर रहे वो कैथलिक नकीब के। और मुझे याद है कि जब कैथलिक नकीब की 75 साला जुबली थी तो मुझे ये कहा गया कि मैं इंटरव्यू करूं। फादर फ्रांसिस नदीम का इंटरव्यू था। यादें याद आती हैं। फादर जी हैप्पी बर्थडे। कोई ऐसा लम्हा नहीं कि हम आपको याद ना करें या आपकी कमी महसूस ना करें। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। खुदा आपको हमेशा का आराम बख्शे। आमीन। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे इन हेवन।
आज सुबह जब मैं उठी तो फादर बर्नार्ड की कॉल आ रही थी. आई अटेंड हिज कॉल और उन्होंने मुझे कहा कि 27 को फादर फ्रांसिस की बर्थडे है एंड वी शुड मेक सम डॉक्यूमेंट्री और आपका मैसेज रिकॉर्ड करना है. आई एम वेरी ऑनर्ड फादर बर्नार्ड, थैंक यू सो मच इस इनिशिएटिव के लिए एंड बीइंग सच अ लॉयल एंड बेस्ट फ्रेंड टू फादर फ्रांसिस नदीम. 27th of October को चाचू की बर्थडे है और चाचू फादर फ्रांसिस इज़ माई वेरी वेरी डियरली चाचू. आई एम वेरी हैप्पी कि वो बेशक आज हम में नहीं हैं लेकिन आज तक हम उनको याद कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रादर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं. और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि उनकी डेथ के बाद उनकी फ़र्स्ट बर्थडे पे फादर बर्नार्ड ने कॉल की एज अ फादर, एज अ कुलीग, एज अ बेस्ट फ्रेंड और उनकी याद में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. चाचू आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे और उसका सबूत ये है कि मैं फ़ेसबुक पे जब भी इंटरफेथ हार्मनी के प्रोजेक्ट के और बिशप हाउस में प्रोजेक्ट्स देखती हूँ और मीटिंग्स देखती हूँ और एक्टिविटीज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि दरख्त कोई और लगाता है और उसका फ़ायदा, उसका पौधा और उसका छाँव का जो मज़ा है बहुत सारे और लोग ले रहे हैं. जैसे आज इंटरफेथ हार्मनी की सूरत में वही लोग सारे जो हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया हुआ है, उस मिशन को कंटिन्यू किया हुआ है और अच्छा लगता है. बस तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि उन सब में मैं अपने चाचू को नहीं देख सकती. लेकिन यू आर इन माई हार्ट चाचू, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट एंड आई एम प्रेइंग ऑन दिस डे कि खुदा आपको अपनी जुआरी रहमत में जगह दे, आप सुकून और सलामती में हो और हम हमेशा आपको इसी तरह से याद रखेंगे. आई लव यू चाचू एंड आई मिस यू. First and foremost, thank you very much, Father Bernard, for giving us this opportunity. शायद इसलिए कहते हैं कि good friends are your family which you choose, and you always will be a part of our family, Father Bernard. So thanks again. चाचू, नेक्स्ट वीक आपकी बर्थडे आ रही है और हम सब अपने अपने तरीके से आपको मिस कर रहे थे और याद कर रहे थे. बट मेरा फर्म बिलीव है आप ये मैसेजेस देख रहे हैं और हम सबको ऊपर से सुन रहे हैं एंड यू नो अबाउट आवर फीलिंग्स के. और मेरा ये भी फर्म बिलीव है कि नीचे भी ज़मीन पे और आसमान पे ऊपर जबकि अब आप इंटरनल लाइफ में हैं, सब आपकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके ओकेजन्स को, आपके इवेंट्स को और आपके वो सब इनिशिएटिव जो आपने लिए थे. चाचू, यू ऑलवेज विल बी मिस्ड, बट आई फर्मली बिलीव कि आपके प्यार करने वाले आपको हमेशा आपके इवेंट्स को ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे. एंड बिकॉज ऑफ द लेगेसी यू लेफ्ट बिहाइंड, यू ऑलवेज विल बी रिमेंबर्ड एंड ऑनर्ड. मिस यू चाचू, बाय. हैप्पी बर्थडे पापा जी. यह आपका पहला बर्थडे है कि आप हमारे साथ नहीं. हम आपको आज के दिन बहुत मिस कर रहे हैं. आप जहाँ भी होंगे खुदा आपको अच्छी जगह और हमेशा का सुकून दे. बचपन से एक जुमला सुनते हुए आ रहे हैं कि वक्त सारे ज़ख्म भर देता है, लेकिन चाचू आपकी डेथ ने मुझे ये बात सिखाई कि वक्त ज़ख्म भरता नहीं है, उनके साथ हमें जीने का आदी बना देता है. आपकी डेथ एक ऐसा ज़ख्म है जो बहुत सारे लोगों की तरह मेरे भी दिल और रूह से कभी नहीं भरेगा. आपकी इतनी मजबूत शख्सियत और इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हर जगह पे, चाहे वो चर्च हो, फैमिली ओकेजन हो या कोई भी सोशल गैदरिंग हो, कहीं पे भी आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि आप खामोश रह के भी सबसे स्ट्रॉन्ग होते थे. आपकी खामोशी में एक बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई थी. मैं हर रोज़ अपने ऑफिस के पास से जब गुज़रता हूँ, वो राउंड अबाउट जहाँ पर मुझे आपकी डेथ की खबर मिली थी, मैं आपको याद करता हूँ. मैं उस राउंड अबाउट से ना भी गुजरूँ तो भी मैं आपको याद करता हूँ. जैसा कि आपके बर्थडे के लिए ये सारे मैसेजेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अच्छे शख्स थे कि आपके जाने के बाद भी लोगों ने, आपके दोस्तों ने, आपके फादर्स ने, आपके फास्ट फ्रेंड ने आप लोगों को याद रखा हुआ है और आपके लिए वो कोई भी ओकेजन जाने नहीं देते, फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मैसेजेस हमें रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं. बस मैं यही दुआ करूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, मेरा पूरा ईमान है कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे शख्स थे. आप हमेशा ठंडी जगह पे रहे और हम सब, मेरी फैमिली, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि आप भूलने वाले शख्स ही नहीं हैं. हैप्पी बर्थडे चाचू.